After Shastri, after Shastri, Indira Gandhi, with the support of syndicate, she defeated Morarji Desai in secret ballot and became Prime Minister of India. Syndicate supported her in order to use her no voice character. Syndicate thought that she expected to follow her advice, but she chose other group for their advice. In 1967, fourth Lok Sabha election held. Opposition followed the policy of non-congressism and defection, so no party get clear majority. But Congress, with alliance with CPI, managed to get in government with lowest tally of seats in Congress since 1952. In 1969, our then President Zakir Hussain died and made the post vacant. Then S. Nijalingappa managed to nominate her opponent N. Sanjeeva Reddy as official Congress candidate. Here, Indira Gandhi called for vote to VV Giri and he wins. And Congress split in Congress R, new, and Congress O, organization old. In 1971, midterm Lok Sabha election happened. Here she gives slogan Garibi Hatao and give party a totally socialist character. But opposition make the attempt to form grand alliance, but it proved to be grand failure. And she got majority with 375 seats of Congress R plus CPI alliance. In economic context, India faces oil prices hike multiple times, low industrial growth, failure of monsoon lead to decline agriculture productivity. The Kavali War India faces in 1947, then Indo-Sino War in 1962, then Indo-Pak War in 1965, then Indo-Pak War of 1971 and Bangladesh crisis. Proved to be they all were proved to be heavy strain on Indian economy, leading to divert the most of the essential resources from development to defense. In 1974, students of Gujarat protest against price hike and corruption that was later joined by Morarji Desai, who went on indefinite fast. Man, do you know our current prime minister was the part of that strike, student strike? Yes, sir. Yeah, and he started his political career for that hostel strike where he stayed. And today is the remarkable day for Indian democracy also, the repeal of the farm law. Huh? Yes, sir. The आज ही हुआ. same, yes, the same government had adopted this law in 2 years back, and same government repealed this law. What is right and what is wrong, it's up to you, political science student, to analyze. Okay, but the same government, after so many deaths, any government, so what is the right or wrong? In the coming days we look into it. आगे आने वाले दिनों में हम इसको, इसका क्या impact होता है वो हम देखेंगे. So very good. Yes, go ahead. The president rule imposed on in Gujarat. Fresh election had fresh election held and Congress defeated. That is now known as the Gujarat movement. In the same year, due to same reason, student protest under the leadership of Jai Prakash Narayan. Bihar government refused to resign. Then JP called for total revolution in social, economic and political spheres in order to stabilize what he considered to be the true democracy. In the same year, National Coordination Committee for Railways Men struggle led by George Fernandez gave a call for nationwide strike to get higher pay scale, bonus, and fixed 8-hour duty in services. The government declared strike illegal and many arrested. The strike had to be called off after 20 days without any settlement. Now I am going to present my screen. Okay, firstly, Lucky, summarize it in Hindi. Okay, Hindi के बच्चे हैं. Lucky, you arrange all these things. Mayank, Lucky. यस सर. Hmm. सर सर बेसिकली सर मैं ने बताया सर
कि सर हम्म, जैसे जब जवाहरलाल नेहरू का डेथ हुआ तो उस समय सर सबसे बड़ा यह बात था कि मतलब अब जो इंडिया की डेमोक्रेसी है मतलब उनको सबसे मतलब संभालना कौन संभालेगा उसको, मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट पीएम कौन बनेगा। तो सर उनमें सर 1967 के इलेक्शन में इंदिरा गांधी हम लोग के प्राइम मिनिस्टर बनती है। बट सर उस समय भी इंडिया इंडो मतलब इंडिया का युद्ध हुआ पाकिस्तान इंडिया का युद्ध हुआ चाइना के साथ। और फिर सर उसके बीच में सर जैसे जैसे विभिन्न स्टेट जो थे वो मेनली मेनली जो इंदिरा गांधी की सरकार थी उनके उनके पार्टी से थे, जिनमें सर सबसे बड़ा नाम था गुजरात का सर। उस समय वहां पर सर मतलब महंगाई बढ़ रही थी, भ्रष्टाचार का बहुत सारा आरोप लगा रहा था उस समय। और सर उस समय जो वहाँ के मतलब एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया वहाँ के विद्यार्थी ने सभी मिलकर ने। बट इंदिरा गांधी ने मतलब गुजरात के सरकार को मतलब असेंबली को मतलब रद्द करने से मना कर दिया, जिसके कारण सर मोरारजी देसाई ने मतलब भूख हड़ताल पर गए थे। और सर एक इसमें एक स्लोगन भी था सर, उसमें जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे उन पर एक बहुत बड़ा आरोप लगा था सर घोटाला का। उनका नाम था क्या नाम उनका, उस मुख्यमंत्री का नाम कुछ नाम था सर। तो उसी पे एक स्लोगन बनता है, गली गली में सो है वो उसका नाम से वो भाई चोर है, चिमन भाई चोर है। चिमन भाई पटेल, चिमन हाँ भाई पटेल। यस सर, चिमन भाई चोर है। तो इन तरह का उनसे नारा लगा रहा था सर। तो बाद में सर मोरारजी देसाई ने फास्ट रखा तो उनके उनके मतलब उनके प्रेशर में अच्छा, तो आके अच्छा, चिमन भाई कांग्रेस के थे ना? यस सर चिमन भाई कांग्रेस के हम्म, थे। और ये नारा फिर कांग्रेस ने और भी लोगों के लिए लगाया है, याद है? तो जब तक हम हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे तब तक हमको पता नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है, समझ रहे हैं? अभी भी लगा था ना, कांग्रेस ने प्राइम मिनिस्टर के लिए लगाया था, चौकीदार वाला जो स्लोगन है। यस सर यस हाँ, तो आप समझ रहे हैं कि हिस्ट्री जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक आप पॉलिटिक्स में सही ढंग से अपने को स्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। वही तो, ये सारी चीजें ना उसी तरह से इमर्ज होती हैं। गुड। तब ये ठीक है सर। करते करते हम लोग रेलवे स्ट्राइक पे आ गए। और इसमें रेलवे स्ट्राइक पे आप लोगों के लिए ये है कि आप दिखाइए थोड़ा सा कि वेजेस क्या था, और जो रेलवे स्ट्राइक खत्म हुई तो वेजेस कितना बढ़ गया। ये सब चीजें थोड़ा सा रिसर्च करने वाली, तभी तो मजा आएगा ना, नहीं तो किताब से उतार देने में तो नौनित मजा नहीं आएगा ना। हाँ, ये सब कौन रिसर्च करेगा? आप ही लोग रिसर्च करेंगे ना, बैंक। यस सर। ये सर कौन ये रिसर्च पार्ट करेगा? सर ये हाँ, पार्ट लक्की को असाइन, हाँ, लक्की से यस डिस्कस होता कि लक्की करेगा। यस यस हाँ, मैंने किया पार्ट को सर। हाँ, तो आपने अगर किया, चलिए तो लकी पहले बोले ठीक रेलवे है पे। सर। ठीक है सर, मैं सर थोड़ा सा स्टार्टिंग से कर दूंगा सर। ठीक है, हाँ, हाँ, तो मैं कर ठीक है देता हूँ। बैंक, आप चलिए, शुरू कीजिए फिर। मैं स्टार्ट करूँ सर? स्टार्ट कीजिए। एक मिनट। और ये इंटरेस्टिंग होगा कि हम बहुत छोटा सा, और आजकल इंटरनेट के ज़माने में मयंक, मैं आइडिया दूंगा ना, और आइडिया पे सब, क्योंकि आप कैसे इन सब चीज़ों को नया बनाएं, एक बार आप सर्च कीजिएगा, आपको कुछ न कुछ डेटा मिलेगा कि रेलवे स्ट्राइक हुआ। यहाँ तो मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होगा कि जॉर्ज फर्नांडिस का करियर भी वहीं से शुरू हुआ था, वो रेल स्ट्राइक से। और जॉर्ज फर्नांडिस एक ऐसे लीडर बने जो कि किसी पार्टी में रहे लेकिन बहुत न्यूट्रल रहे। और आपको पता होगा कि अटल बिहारी बिहारी वाजपेयी के गवर्नमेंट में वो डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। सर शेयर हो रहा है स्क्रीन सर? यस अभी नहीं हो रहा है। अब हो रहा है, यस, गो हेड। दिख रहा है सर डीपीटी सर? हाँ, हाँ, पीपीटी दिख रहा है, हाँ। फर्स्ट पेज लाइए। सर वो दिख रहा है सर? ठीक है सर। हाँ, हाँ, दिख रहा है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा इसको अगर बड़ा कर सकते हैं, अपनी स्क्रीन पे कोई होगा आपके पास मैं बटन स्टार्ट। वगैरह, ऊपर देखिए। हम्म ऊपर देखिए, थर्ड नंबर का बटन, सेंट्रल का जो बटन है ना, उसको अगर क्लिक कीजिएगा तो पूरे पे आ जाएगा शायद। हम्म हाँ, अब पूरा आ रहा है, देखिए। ठीक है बैंक ऐसे स्टार्ट दिखाते करते हैं, सर। ये आपका भी ऐसे ही होगा, लेकिन आपका भी छोटा आ रहा था। यस, यस। ठीक है सर, मैं
बेसिक स्टार्ट करता हूँ बैकग्राउंड ऑफ इमरजेंसी सर। तो मेरे सर स्टार्टिंग ईयर क्या है सर 1969 से। सर in 69 the Congress party decided to nationalize 14 private banks. It means that the government would take ownership of those banks from the private companies. जैसा हम लोग जानते हैं कि सर 1969 को इंदिरा गांधी की सरकार ने यह निर्णय लिया कि 14 जो बैंक प्राइवेट बैंक है उसको नेशनलाइज किया जाएगा। मतलब ये था कि उनका जो ओनरशिप था वो प्राइवेट बैंक से सरकार के हाथों में आ जाएगी। अब बस ऑब्वियस सी बात है सर कि इसमें से बहुत सारे जो बिजनेसमैन थे वो तो सरकार से नाखुश होंगे ही ना। उनमें से सबसे बड़ा नाम आता है सर JRD टाटा का, जो जिन्होंने सबसे पहले इसको अप्रोच किया था। फिर उनमें से बहुत सारे इन्वेस्टर एंड शेयर होल्डर थे सर। अब सर जैसा हम लोग जानते हैं कि पार्लियामेंट में ये होता है कि जब भी कोई चीज मतलब अध्यादेश जारी होता है तो उसके लिए पहले पार्लियामेंट उसे अपने सेशन में उसको प्रस्ताव पारित करती है, फिर उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है। बट इसमें एक स्पेशल इंसिडेंट ये हुआ सर, सरकार ने 18 जुलाई 1969 को डिसाइड किया गया इसको एक ऑर्डिनेंस के द्वारा हम इसको पार्लियामेंट में पास करेंगे। बट 21 जुलाई को पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट होने वाला था और 20 जुलाई को जो प्रेसिडेंट थे वो अपनी ड्यूटी को छोड़ने वाले थे। तो सर इस इस ऑर्डिनेंस को पास करने के लिए मिडनाइट 20 जुलाई को मिडनाइट इस पर साइन करा दिया गया। तो सर इससे हम देख सकते हैं कि सर इंदिरा गांधी अपनी पॉलिसी को लेकर कितनी जागरूक थी, या सर उस तरह के हम माहौल के हिसाब से जो इंदिरा गांधी को इस तरह से काम करने में मजबूर किया। जिस तरह की फार्म लॉ हुआ था विदाउट पार्लियामेंट यस सर, करते हुए। यस सर, सेम सेम यस सेम गुड। ठीक सर। अब सर आप इसके पीछे जस्टिफिकेशन क्या है इंदिरा गांधी का, तो उन्होंने बताया द जस्टिफिकेशन फ्रॉम द इंदिरा गांधी वाज दैट इफ द बैंक वुड गेट नेशनलाइज्ड देन द बैंक्स could reach everywhere in the country and could provide the service to even the poorest citizen, something a for profit company never do। मतलब इसके पीछे इंदिरा गांधी ने अपना व्यू दिया कि अगर हम सभी राष्ट्रीय बैंक को, प्राइवेट जो भी बैंक उनको हम राष्ट्रीयकृत करते हैं तो ये बैंक मतलब देश के विभिन्न भागों में जाएगा और जो गरीब से गरीब इंसान होंगे उनको ये फायदा में पहुंचाया जाएगा, जो सर एक प्राइवेट कंपनी शायद ही कभी कर पाए। अब सर इनके अब जो भी शेयर होल्डर थे तो उनको इनका नाखुशी होगी सर। तो इनमें से एक व्यक्ति का नाम था RC कूपर, जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एक शेयर होल्डर थे। उन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। अब उस याचिका का जब फैसला आया तो सर जो सुप्रीम कोर्ट था उन्होंने इस ऑर्डिनेंस को रिजेक्ट कर दिया गया। अब ओके, उसने जब रिजेक्ट, एक क्वेश्चन यहाँ पे होता है, हाउ वन पर्सन goes to district court, goes to high court and goes to Supreme Court? In which ways or in which circumstances? यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के आप लोग स्टूडेंट हैं, मैं क्वेश्चन पूछूंगा नहीं अभी, ये आप लोगों को जानना चाहिए कि एक आदमी, मान लीजिए मैं किस सर्कमस्टांसेस में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे जा सकता हूँ, कब हाई कोर्ट पे जा सकता हूँ और कब सुप्रीम कोर्ट पे जा सकता हूँ। तो नौनीत ये क्वेश्चन होना चाहिए कि कभी हम सुनते हैं कि हाई कोर्ट में गया, कभी सीधे सुप्रीम कोर्ट में गया, कभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया, तो ये डिफरेंस क्या है आप सब लोगों को पता होना चाहिए। मैं नहीं जानता हूँ कि पता है या नहीं है, लेकिन आप लोगों को in which circumstances you go to the district court, you go to the high court, you go to the supreme court and the PIL, in which, तो ये जो जितने भी मैकेनिज्म है वो किस circumstances में you are going to entertain. So this is the most important thing. Karthikesh, am I right? Yes, sir. Do you know? Yes, I know about that. PIR, as in public interest regulation. Bas, because maybe you could submit one those PIL, huh? Okay, Yeah. go ahead. If necessary, sir. Yeah. No, आगे बढ़ो सर। it's also necessary to know the High Court and Supreme Court and yes, go ahead. Yeah, Lucky, good. सर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो उन्होंने बताया कि ये जो बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया है वो सर वो जो भी शेयर होल्डर है उनके लिए वेरी, और इस ऑर्डिनेंस को सर We lost you, Mr. Lucky. We lose your voice. तो मयंक आवाज दीजिए। Yes, sir.
Hmm. मतलब yes. Lucky, stop. I think your voice is not coming. अब नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। अ, चलिए, तो ये समझ में आ गया, आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। सुमैंक, इल स्टार्ट फ्रॉम हियर, या आपका जो भी पोर्शन है आप स्टार्ट कीजिए। Yes, sir. Yes, sir. या The the next portion is the Indira Gandhi versus judiciary. The constitutional issues had emerged. First, can the parliament abridge fundamental rights? The Supreme Court said it cannot. Second, can the parliament curtails the right to property by making an amendment? Again, the court had said parliament cannot amend in such a manner. Third, the parliament amend the constitution by saying that it can abridge fundamental rights or giving effect to directive principle, but the Supreme Court rejected. This crisis क्या मतलब हुआ, culminated. इसका थोड़ा मतलब समझाइए। सर इंदिरा गांधी और जुडिशरी के बीच में तीन बातें थी कि जो पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को भी अब्रिज कर सकता है, काट मतलब उसमें काट छाट कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, फंडामेंटल सोल है, उसे नहीं कर, कुछ नहीं कर सकता पार्लियामेंट। सेकंड क्वेश्चन था कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो फंडामेंटल राइट था पहले, जो कि बाद में हटा दिया था फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा। तो उसे भी मतलब कर्टेल किया जा सकता है, उसमें भी काट छाट की जा सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे ही मना कर दिया। थर्ड जो पॉइंट था कि पार्लियामेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इफेक्ट देने के लिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को और इफेक्टिव बनाने के लिए फंडामेंटल राइट्स भी किसी के छीन सकता है, मतलब कुछ काट छाट कर सकता है। पार्लियामेंट ने ये भी मना कर दिया और ये सब कल्मिनेट हुआ केशवानंद भारती केस में, जिसमें कोर्ट ने कहा कि नो वन कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड make changes in the basic features of the constitution. Yes, this is the most important, and every time is still right now also, people are fighting against the government that you are not going to change the fundamentals of the constitution. And this Keswanand Bharti case was the one of the finest example to preserve the fundamental rights in India, and also protect of a natural justice in India still. So जो लोग नहीं पढ़े हैं, कम से कम केशवानंद भारती केस को जरूर पढ़िए, खासकर हिंदी ऑनर्स के बच्चे, आप आज जाके केशवानंद भारती केस को जरूर पढ़ेंगे। Yes, Yes. go ahead. Apart from these three major issues, the appointment of the post of the Chief Justice of India, it had been a practice to appoint the senior most judge of the Supreme Court as the Chief Justice of India. But the Congress, led by Indira Gandhi, wanted to elect A.N. Rai as the Chief Justice of India, keeping aside the seniority of three judges. This appointment became politically controversial because all three judges who were suspended had given rulings against the government. People close to Prime Minister started talking of the needs for a judiciary and the bureaucracy committed to the government and the parliament. Go ahead. On 12th June 1975, Justice Jagmohan Lal Sinha declared Indira Gandhi's election from Rai Bareli constituency to Lok Sabha election invalid in the famous case of Indira Gandhi versus Raj Narayan case. It is said that she used government machinery to set up stage and loudspeaker. She used gazetted officer Yashpal Kapoor as an election agent. Since Kapoor, under Gandhi's instruction, delivered election speech on 7 Jan 1971 and he resigned from the post of PM Secretariat on 13 January 1971. Now,
A big political confrontation had set up. After the Supreme Court verdict, the opposition party led by Jayaprakash Narayan pressed for Indira Gandhi's resignation. He organized demonstration in Delhi's Ramlila grounds on 25th June 1975 and announced nationwide satyagraha for her resignation and asked army, government employees, and the police not to obey any orders. Next, the response of the government. In response, the government on 25th June 1975, on the basis of internal disturbance, she evoked Article 352 of the Constitution and proclaimed emergency. This type of emergency earlier proclaimed on 1962 Indo-Sino War. Emergency gives government power to curtail fundamental rights also when normal democratic function doesn't work. Then what happened in the consequences of the emergency? Strikes by opposition parties were banned, leaders were put in jail, government suspend freedom of press censorship held, she banned Rashtriya Swayamsevak Dal and Jamal-e-Islamia to make communal harmony, and federal structure is suspended. Fundamental rights of the citizens are suspended. She used preventive detention, MISA, intensively. एंड ये बुक है ज्ञान प्रकाश की. इसमें ही कहते हैं इमरजेंसी प्योरली पॉलिटिकल नहीं थी क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के चोंगा या कपड़े में पहन के आया था. एंड नाइदर कंप्लीटली ज्यूडिकल नॉर कंप्लीटली पॉलिटिकल. द पैराडॉक्सियल, इसमें विरोधाभास है कि इसमें लॉफुल राइट को सस्पेंड किया बाय द यूज ऑफ लॉ. एंड ये कहते हैं ये स्टेट ऑफ एक्सेप्शन है. द पॉलिटिकल वर्कर who were not sent in jail in first wave went underground. The government did 42nd amendment and make major changes, include citizens' duties in the constitution, and now no court interrupt in election of president, vice president, and PM. Newspaper like Indian Express and Statesman protest against the censorship by leaving blank space, as seen in the photo. Magazines like Seminar and Mainstream does not submit to the censorship. The press media use leaflets and letters items to bypass the censorship. The renowned leaders like the Paniswarnath Renu returned their prestigious rewards of Padam Bhushan and Padam Shri. The government's view on emergency. Government say in the beginning of 1974, agitation were going on in many parts of the country against Indira Gandhi. The frequency of the protest in the country was not good for its functioning. The protests lead to instability and distract in the administration. Government energy is diverted towards mainstream law and order in the country rather than promoting welfare of the people. Parties like CPI continue to back Congress for declaring emergency. CPI को ये पांचों पॉइंट को हिंदी में बताइए. गवर्नमेंट का कहना था कि 1974 के स्टार्टिंग से ही प्रोटेस्ट हो रहे थे जिससे गवर्नमेंट अपना रेगुलर वर्क पब्लिक वेलफेयर के लिए नहीं कर पा रहे थे, जिससे उनका डिस्ट्रैक्ट हो रहा था एडमिनिस्ट्रेशन में काम, तो उन्हें इमरजेंसी लगानी पड़ी. और इसमें कोट है आकाशवाणी का, जिसमें इंदिरा गांधी कहती हैं लोकतंत्र के नाम पर खुद लोकतंत्र की राह रोकने की कोशिश की जा रही है. वैधानिक रूप से निर्वाचित सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा. आंदोलनों के माहौल सरगर्म है और इसके नतीजतन हिंसक घटनाएं हो रही हैं.
एक आदमी तो इस हद तक आगे बढ़ गया, एक आदमी मतलब जेपी, एक आदमी तो इस हद तक बढ़ गया कि वह हमारी सेना को विद्रोह और पुलिस को बगावत के लिए उकसा रहा है। विघटनकारी ताकतों का खुला खेल जारी है और सांप्रदायिक उन्माद को हवा दी जा रही है, जिससे हमारी एकता पर खतरा मंडरा रहा है। अगर सचमुच कोई सरकार है तो वह कैसे हाथ बांधकर खड़ी रहे और देश की स्थिरता को खतरे में पड़ती देखती रहे। चंद लोगों की कारस्तानी से विशाल आबादी के अधिकारों को खतरा पहुंच रहा है। और इस पर जेपी का कुछ कहना था। The main justification given by the JP for his movement was that it aimed at ending corruption in day-to-day life and politics, whose fountainhead was Mr. Gandhi, Mrs. Gandhi, and to defend democracy, which was threatened by her authoritarian personality, policies, and style of politics. Her continuation in office, he said, was incompatible with the survival of डेमोक्रेसी इन इंडिया। कहने का मतलब कि जेपी कह रहे हैं कि करप्शन हो रहा था उस टाइम, और करप्शन हो रहा था मिसेस गांधी की वजह से, जिसकी वो फाउंटेन हेड थी, और उनकी अथॉरिटेरियन जो पर्सनैलिटी है वो असंगत है डेमोक्रेसी के साथ, इसलिए उन्होंने ये सब किया। देन व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग इमरजेंसी? Indira Gandhi launched 20-point program, land reforms, land redistribution, eradication of bonded labor, workers' participation in management, review agricultural wages, eradication of bonded laborers. But the critics of emergency point out that most of these promises by the government remained unfulfilled, that these were simply meant to divert attention from the excesses that were taking place. Then the Shah Commission's report. शाह कमीशन कहती है, नहीं वो मत पढ़िए, वो हमने बताया शाह कमीशन रिपोर्ट आई थी इस पे, और बताइए और पॉइंट दूसरा। 3 पॉइंट है शाह कमीशन, और ये द संजय स्टोरी। अच्छा चलिए शाह कमीशन को समराइज कीजिए बस। शाह कमीशन में कहते हैं कि the Shah Commission estimate that nearly 1,11,000 people were arrested under preventive detention law. Severe restrictions were put on the press, sometimes without proper legal sanctions. The Shah Commission report mentioned that the general manager of the Delhi Power Supply Corporation received verbal orders from the office of the Lieutenant Governor of Delhi to cut electricity of all newspaper press at 2 a.m. on 26 June 1975. Electricity was restored 2 to 3 days later after the censorship apparatus has been set up. और शाह कमीशन ने पूरी इंक्वायरी की और ये भी दिखाया कि कस्टोडियल डेथ भी हुई थी उस टाइम, डिमोलिशन ऑफ तुर्कमान गेट, वहां पे झुग्गी झोपड़ी को हटाया गया था जबरन, और द फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन भी करवाया गया था, नसबंदी करवाई गई थी, फोर्स। ठीक है, यस सर। सर विनोद मेहता इन हिज बुक द संजय स्टोरी फ्रॉम आनंद भवन टू अमेठी टोल्ड दैट एवरी रूल, हर रूल को तोड़ा गया या बाईपास कर दिया गया संजय को जमीन, मशीनरी और लोन्स दिलाने के लिए, बिकॉज उनका सपना था कि कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बने, और इन्होंने अप्रेंटाइज भी ली थी वहां से रोल्स रॉयस से, जो 3 साल की थी, लेकिन ये 2 साल में भाग आए थे वहां से। द अपोजिशन पार्टी हैड अ फील्ड डे। चलिए ये तो हम सब देखते हैं। अच्छा, आज इंडिया के पास अपनी कोई कार कंपनी है? जैसे टाटा जैगुआर है, रोल्स रॉयस भी है जो टाटा के अंदर आती है। बस सिर्फ नहीं तो टाटा का एक टाटा और कितने सालों से है? कोई नई कंपनी क्यों नहीं आ गई? कोई एक कंपनी, हम तो कैपिटलिज्म में है इंडिया से, और क्यों नहीं कोई नई कंपनी आई?